I think everyone joined this seminar just because of the word Panchanama, death, crime, etc. Well, that is the scene. You all of know that CID serial in Sony channel, and there is one doctor of forensic expert, Dr. Salunke. But Dr. Salunke and CID officers make whole crime scene live in laboratory, and after that they catch the accused person, and later on what will happen to the court or not, that is not known to anybody. अपने को ऐसा लगता है चलो उसको पकड़ा, पंचनामा किया, एविडेंस लिया और सब खत्म हो गया. ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट लाइक दैट. It is not such an easy task. First of all, what is my Panchanama and what is my Pancha? You might have heard one serial or Panchayat. One Panchayat serial comes to web series came to one channel. I don't know the which channel, but there is Panchayat. What is mean of Pancha there? Pancha means 5 people of the village which distribute equally justice to people, right? From that word panchayat, pancha, so panchanama comes. So we have to look the definition of panchanama. Basically, panchanama means collection of primary record and evidence about crime scene. It is more often done for theft, robbery, and murder scene. Now, you and me, we don't come across every now and then theft, robbery, murder, etc. But as a lawyer, you should know Panchanama, memorandum of Panchanama is what, Pancha is what, and Panchanama what is to be done. When any crimes happen, then police reach to the crime scene and they ask to set aside of that crime scene to various people around them. लोग देखने के लिए जम जाते हैं ना, उनको हटाते हैं, and there will be ring or there will be chalk, और nowadays forensic laboratory में देखते हैं there will be yellow color का band. In that yellow color का band, no one should come across the yellow color band. Okay, so Panchanama is what? When police do inquiry and observe the crime scene, then at that time, few bloodshed, weapons, object were detained by police, and that blood, crime scene, gun, etc. detained as per the law. So Panchas will be there. Now, who will become Pancha? Anybody who is above 18 years can become the Pancha. But Supreme Court in various cases says that Pancha would be that person who will understand the gravity of crime scene. Now crime scene मतलब क्या? मैं आपको बोल चुका हूँ crime scene क्या है. Crime scene कुछ भी हो सकता है, like theft, murder, robbery, etc. 18 years and above का पंच होना चाहिए. Such people can be pancha, but some government servant, if they are living thereby in a vicinity, should always be pancha. The reason is the government officers or government servant become available and their addresses are there in court record and addresses there in government record, that whenever they will call by the court, then pancha or panchanama should be proper. Now, what precaution must be taken while panchanama? Panchanama always had to be in positive manner. समझो मेरे यहाँ पे मेरे ऑफिस में चोरी हो गई, मैंने पुलिस को बोला मेरे ऑफिस में 3 कंप्यूटर और 2 लैपटॉप है, अभी एक लैपटॉप मिल नहीं रहा है, चोरी हो गई है. Then police persons will come to my office, do the panchanama of robbery, नहीं तो theft, and they write down 3 computers are there, 4 computers are there, and XYZ laptop is missing. They will not write XYZ laptop is not available. पंचनामा always be in positive manner, negative manner में नहीं होना चाहिए. मतलब समझो किसी का मर्डर वगैरह हो गया तो पुलिस ऐसा नहीं लिखेगी कि उसका ब्लड सिर्फ वॉल पे था, जमीन पे नहीं था, ऐसा नहीं लिखेंगे. जो दिखता है, जो प्रॉपर आइज से थ्रू नेकेड आइज से देखता है, वही पंचनामा में होना चाहिए. नाउ व्हाट इज इंक्वेस्ट पंचनामा? Inquest is quest in quest. Quest is what? Suppose any non-living person is there, then there will be panchanama. So any sort of
crime is done by any weapon and there is dead body of it, then Panchanama of a dead body is called a inquest Panchanama. Now, there are many types of Panchanamas of inquest Panchanama is there. I will conclude 2, 3. Rest of we will look after. First is dead body by murder. We have suppose we are in metro cities, we don't know who are living beside us, who are our neighbors. There is many people who don't know who are our neighborhood. Suppose आपके आजू बाजू में कोई घटना घटी, कोई मर्डर वगैरह हो गया, अपने को 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि बाजू में ऐसा ऐसा हुआ है, अभी बाजू में मर्डर हो गया है। जब उसका बदबू आता है तब पता चलता है, तब हम लोग पुलिस को बोलते। इन दैट टाइम इंक्वेस्ट पंचनामा इज देयर। गॉट इट? हाउ टू कैलकुलेट डेड बॉडीज, डेड पर्सन डेथ, इट will look in the next topic. So that is a inquest Panchanama. Now what is accident Panchanama? We have seen famous actor of Bollywood that their accident was in near home, near that actor's home, that Panchanama took place. Then police person of that vicinity took crime on record and they did Panchanama. Of accident Panchanama, we did what? Kidding mark, गाड़ी के शीशे जो है, शीशे टूट गए तो वो शीशे जिस गाड़ी को एक्सीडेंट किया उस गाड़ी के रिकॉर्ड्स हम लोग ले लेंगे। अपने को क्या होता है कि एक्सीडेंट पंचनामा में ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल का भी एक मेंशन करना चाहिए पंचनामा में। 90% ऑफ द पंचनामा ये नहीं करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ फिर फॉरेंसिक में आ जाता है। नाउ थेफ्ट पंचनामा। थेफ्ट पंचनामा, व्हाट इज इट? दैट सपोज any theft has been happened to any place like office, home, anybody, anything, then there would be Panchanama. In that Panchanama, I will take one example. Suppose मेरे ऑफिस में चोरी हो गई, मैंने देखा मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कोर्ट के वगैरह कुछ खराब हुए हैं। जो चोर थे मेरे ऑफिस में आ गए, वो लैपटॉप लेके गए, कंप्यूटर इधर उधर पड़ा है, तो फिर मैं तुरंत जाता हूँ तिजोरी खोलने में और देखता हूँ तिजोरी में मैंने क्लाइंट से लिए हुए मेरे फीस ठीक है कि नहीं, जैसी है वैसी है कि नहीं। तो फिर मैं तिजोरी खोलता हूँ और फिर तिजोरी में पैसे नहीं रहते, तो फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि मेरे यहाँ पे चोरी हुई। इट इज रॉन्ग। एज अ एडवोकेट you should understand, in a defense law it will be the main question for cross questioning, that when you got your safe opened by yourself, it is happen that whether your money is lying there or not. So I will say no, my money is not there, my fees are not there, so I filed a case, I filed a theft case. ये wrong है। जब भी theft का पंचनामा होता है ना अपने घर में, अपने ऑफिस में या फिर किसी भी ऑफिस में वगैरह घर में कोई चोरी हो गई, तो कभी भी उसको कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपने को पता चला अपना लॉक टूटा हुआ है, अपना लैच टूटा हुआ है, तुरंत पुलिस को बोलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, लॉक खोल के, कड़ी खोल के, कुछ ना कुछ खोल के अपने अंदर जाते हैं, अपना जेवरात वगैरह देखते हैं और फिर फोन करते हैं पुलिस को। नहीं है कर, इट इज रॉन्ग, इट इज फॉर फैटल ऑफ योर क्रिमिनल केस। नाउ डेड बॉडी का पंचनामा। यू हैव सीन अवर प्ली का जो मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला था मेरे स्टेटस पे, उसमें एक फिगर है कि डेड बॉडी उधर थी, डेड बॉडी लेके गए, उधर चौक से ऐसा कुछ ना कुछ तो उसका आकार दिया हुआ है। आकार दिया हुआ है मीन्स व्हाट? इट मीन्स हाउ द डेड बॉडी लाइंग देयर, नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था। इफ यू गो टू कोर्ट, many lawyers are there. If you go to court, you can see many courts are having name like north, south, east and west on the wall. Why it is there? It is there because to suppose I have to identify someone in the court, then court will ask me that where that thief is sitting now. So I will say that thief is sitting on the first row of the second line in that कलर का शर्ट वगैरह। तो फिर जज साहब लिख के लेंगे, नॉर्थ में तीसरे नंबर की चौथी लाइन जो है, दूसरी लाइन जो है, उसमें ऐसा ऐसा चोर बैठा है, मिस्टर आकाश ने उसको पहचान लिया। तो फिर डेड बॉडी भी वैसे का पैसा पंचनामा रहता है, हम लोग आके देखेंगे डेड बॉडी पंचनामा कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। और जस्ट बिकॉज मेनी क्रिमिनल लॉयर डोंट नो हाउ टू डू क्रॉस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ मर्डर, etc., fatal injury, etc.
So we will see how forensic work in investigation done. We will see post-mortem. You might have heard the name post-mortem. Post mean we all know prepaid and postpaid. तो यहाँ पे पेड की जगह पे mortem वर्ड यूज करना है. प्रीपेड क्या है, पोस्टपेड क्या है. तो फिर पोस्टमार्टम क्या है, प्री मॉर्टम क्या है. मॉर्टम मीन्स मरना, मारना. मॉर्टम मीन्स एग्जामिनेशन टू बी कैरिड आउट आफ्टर द स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ brain and heart. So when autopsy done, in that time autopsy will be doing by doctor which are very expert in forensic knowledge. I will see, rather I will give you hint that suppose you are acting as a defense attorney in one murder case, then as a puncher you can ask the opposite party or witness to how you come to as a puncher, as a prosecution witness in this case. Then the witness answer that I come to the court to give my witnesses, to give my evidences, to give my statement to the court because I have been called by the police. So as a defense lawyer, our next question would be how you will be called by the police, whether your phone number, whether your address has been told or the exchange by the police. Then we have to say no, or we have to say I was studying there, I was going through that Panchanama, so I give my phone number or address to the police. Then police ask me to come to the court or come to the police station and sign some papers or sign then and there. After that, police or prosecutor or defense lawyer will give some idea about the case. If you are working as a puncher in criminal case, then defense lawyer will ask following question. Cooling of the body. अपने को सबको पता है कि आदमी मरने के बाद 2-3 घंटे 3-4 घंटे के बाद उसका बॉडी कूल होना चालू होता है. पहले गर्म होता है और 1 घंटा गर्म होता है और 1 घंटे के बाद कूल होना चालू करते हैं. उसको बोलते हैं, सब ये लैटिन वर्ड है, उसको बोलते हैं एलोगर मॉर्टिस, कूलिंग ऑफ द बॉडी. सो एज अ डिफेंस लॉयर यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू योर विटनेस व्हेन बॉडी गॉट कूल्ड, हाउ मच टाइम द बॉडी वर लेइंग एट अ criminal site, and you have to answer whatever it is there, true and correct. Now changes in the eyes. Now this is the word of seminar, webinar on web series. Changes of the eyes is there in every senses of whether it is criminal case, whether मैंने 4-5 घंटा आराम नहीं किया, मैं दिन में 2-2 घंटा ही सोता रहा, तो भी मैं मेरे चेंजेस होता है आईज में. सपोज कोई लोगों को बीमारी रहती है कि रात भर न सोने. एक पिक्चर भी आया था उधर उसके लिए बॉलीवुड में कि एक एक्टर रहता है, उसको रात भर नींद नहीं आती तो वो घूमने चला जाता है वगैरह. तो इन दैट टाइम सपोज सच पर्सन विल डेड आर डाइड according to XYZ disease or according to one crime, then its eyes will be changed after his or her death. तो eyes हम लोग बोलते हैं कि आंखें खुली रहती है, आंखें बंद रहती है, आंखें बाहर आती है, ऐसा नहीं होता. It depends on the contraction of a body. Suppose I have big muscles, I am doing yoga, pranayam, etc. Then my eyes will be as it is of my skin. Then there will be changes in skin. As we can see कि हमने किसी ने कभी भी तो डेड बॉडी देखी होगी, हमने सिर्फ चेहरा देखा होगा, लेकिन आफ्टर 4-5 hours of the such incidents, then skin will be get contracted because the muscle in the body get contracted. Now cooling of the body, cooling of the body is as I already know that coldness is algor and mortis is death. algor और mortis ये सब लैटिन वर्ड है, अपने को समझेगा नहीं, अपने को उसमें जाने का नहीं, तो फिर उसको सब समझना है. हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं. अभी थेनोस सबको मालूम होगा. थेनोस वो चुटकी में एक चुटकी बजा के आधा ब्रह्मांड तहस नहस करता है, उसको बोलते हैं थेनोस. तो थेनोस वर्ड कहाँ पे आया? एक ग्रीक वर्ड है थेनोलॉजी, स्टडी ऑफ डेथ. सो इन थेनोलॉजी इट इज कॉल्ड, सपोज XYZ person is dead, then body of particular angle is in cold side, body of particular angle is in heat side, then stopping the function of brain and heart will depends on
which side it is. हमने देखा है 5-5 6-6 दिन कोई बेहोश होता है, 6वें दिन वापस आता है, कोमा में रह के वापस आता है, तो फिर उसका पल्स रेट बहुत ही डाउन हो जाता है. इट इज कॉल्ड बॉडी कोल्ड या फिर गेटिंग द बॉडी coldness in the temperature. So why body gets cold? Because heat production stops. Now why heat production stops? Because as our muscles get contracted and there will be no food in the body, so heat production will be automatically stopped. So the progressive fall of temperature is death. But that is what? That as I have already told you, that is nothing but the stopping the function of brain and heart. Primarily, it is decided the time of death is postmortem is done within 24 to 48 hours. But nowadays, forensic is there, so which exactly will tell you, even after the skeleton, it will tell you how much time it has been grasped to the body got dead. How to count the temperature of dead body? As we know that normal body temperature is 35 to 37 degrees, but suppose you may be having friend, whenever you hold hand of that friend, you find it, अरे यार तेरा हाथ कितना ठंडा है, तेरा हाथ हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है, या फिर अरे यार तेरे को बुखार आया क्या, तेरा हाथ कितना गर्म है, तो वो डिग्री सेल्सियस का फर्क हो जाता है. तो फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज एज आई मेंशन इन पीपीटी 36.5 to 37.5 इतना हो जाता है. तो फिर जिसका बॉडी हमेशा ही गर्म रहता है, उनका डेड बॉडी का टेम्परेचर कैसा चेक करने, या फिर जिसका बॉडी हमेशा ठंडा ठंडा रहता है, उनका डेड बॉडी का टेम्परेचर कैसा कलेक्ट करने का वो देखेंगे. ये सब क्वेश्चन एज अ डिफेंस लॉयर आप डॉक्टर को पूछ सकते हो इन अ विटनेस बॉक्स दैट हाउ यू कैलकुलेट the dead body temperature. Then he will you answer that he put a thermometer in a rectum or a nostril swab, cut stomach, etc etc. अभी ये nostril swab करके हम लोग 2-3 साल से करके आ रहे हैं, हमेशा वो swab अपना नाक में घुसाने का, उसका swab लेने का और अपने को कोविड है कि नहीं देखने का, दो साल हम लोग करके आए, इसलिए सबको मालूम. रेक्टम और कट स्टमक करके, क्योंकि as you know our stomach is connected with 7 layers of the skin. तो 7 layers के बाद उसके लिए अपना टेम्परेचर क्या होता है, डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वो चेक करने के लिए अपने को उसका थर्मोमीटर वो कट करता है, थोड़ा सा कट करता है और वो स्लिट के अंदर वो थर्मोमीटर डाल के फिर उसमें टेम्परेचर लिख के लेते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सपोज डेड बॉडी while he was alive, he was suffering from a fever, tuberculosis, STD, sexual transmitted disease, or flu, etc. Then his body temperature is isopacific phase में ज्यादा हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को अगर बुखार वगैरह आया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता ही जाता है. तो फिर कैलकुलेट वैसे कैसा करने का, नीचे मैंने दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ डेथ, कब हुआ उसका डेथ, इज इक्वल टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिवाइडेड बाय एवरेज फॉल ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 0.6 डिग्री पर आवर और फिर पर डे होता है. नाउ ट्रॉपिकल रीजन लाइक सेंट्रल इंडिया, डेड बॉडी अटेन्स एनवायरमेंट टेम्परेचर इन 60 to 20 आवर्स. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करो, नहीं तो उसको लास्ट रिचुअल्स बराए करो, नहीं तो उसको जलाओ वगैरह, क्योंकि 20-30 आवर्स के बाद उसका स्मेल आना चालू हो जाता. ठीक है. नाउ द डेड बॉडीज टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉइजनिंग, bacterial infection, mode of death, and surrounding where the dead body was found. And environmental temperature is there also. Suppose the dead body found in ice or freezer, there are many cases, you can Google it, that एक केस था, दिल्ली का केस था, आज से 5 से 7 पहले. उसने अपने बीवी का मर्डर किया था. बीवी का पूरा बॉडी, डेड बॉडी उसने एक नया फ्रीज लाया था, नया फ्रीज में डाला था और उसके बच्चे को लेके जाता था गार्डन में, और हर एक बॉडी का पार्ट, एक हाथ रखो, नहीं तो एक आईज रखो, कभी कभी पैर का कोई तो पार्ट रखो, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके वो डेड बॉडी का पार्ट लेके
फेक था। तो फिर पुलिस को कैसे पता चला कि दैट हाउ ही इज एक्टिंग आफ्टर मिसिंग ऑफ हिज वाइफ? देन police has found that there is a new refrigerator. That refrigerator is not as usual as आपके और मेरे घर में रेफ्रिजरेटर रहता है, वो नहीं, वो आइसक्रीम वाला रेफ्रिजरेटर था। तो फिर पुलिस को कुछ ना कुछ शक आया, फिर पुलिस ने उसको पंचनामा किया और जो डेड बॉडी था, जितना भी डेड बॉडी का पार्ट था उधर पड़ा हुआ था, तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें फाइंड आउट किया कि रोज थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बूटी को वगैरह काट के वो डेड बॉडी तहस नहस कर रहा था। तो दैट टाइम द डेड बॉडी फाउंड आफ्टर द लॉजिकल explanation of his crime. Now, as I explained, you know what I mean, the mortem, postmortem, perimortem. Perimortem means antemortem, perimortem is what? अभी अपने को पता है कि सपोज हम लोग कोई अच्छे से होटल में खाने को जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरीमोर्टम एंड एंटीमोर्टम, सो प्लीज लुक आफ्टर दैट। सपोज हम लोग अच्छे होटल में खाना खाने को जाते हैं और हम लोग बोलते हैं यार ये चिकन में मजा नहीं आया, चिकन बहुत पुराना पुराना सा लग रहा है, या मटन को मजा नहीं आया, मटन बहुत पुराना पुराना सा लगता है, मतलब वो मटन एंटीमोर्टम है। ठीक है, मतलब कि जैसे मटन या चिकन का टेस्ट अलग सा लगता है, तो फिर समझ जाने का वो मटन या चिकन आइदर बहुत पुराना है या फिर बासी है। तो ये सेम थिंग अपना ह्यूमन बॉडी को भी अफेक्ट करता है। तो फिर पेरीमोर्टम देखते हैं, एट द नियर द टाइम ऑफ अ डेथ पेरीमोर्टम इंजुरीज आर देयर। सपोज इन ये पेरीमोर्टम एंटीमोर्टम मेनली एक्सीडेंट केस में दिखाए जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद 3-4 दिन के बाद वो मर गया। मरा क्यों? क्योंकि आइदर लॉस ऑफ ब्लड या फिर स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन अगेन। So the healing of a brain or a healing of a bone or a healing of any injury, it depends upon the injury and the depth of the damage of the injury. ठीक है, अपने को पता चलता है अरे यार हमारे एक अंकल था या फिर सामने वाले अंकल एंड या फिर आंटी, उनका कुछ ना कुछ कार्डियक अरेस्ट हो गया, फिर उनका हार्ट अटैक आ गया। I will explain heart attack is as simple as science. Suppose we have one full bottle of water, bracket of water, and that bucket we will pour in flat tube light or समझो learn floor of flat करके अपना पानी जाएगा। वो पानी जाने के उधर हम लोग पूरा का पूरा वो वाटर अफेक्ट कर लेंगे या फिर उतार देंगे। तो छोटे से वाटर बॉटल में से एक वाटर बकेट का पानी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। उसको ही बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, और फिर लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हार्ट अटैक आ जाना। सपोज मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मतलब मेरे बॉडी में से बहुत सारा खून मेरे हार्ट की तरफ गया और हार्ट का जो वेन होता है वो पतला था, तो फिर पतले वैन से इतना सारा ब्लड नहीं जा सकता था, तो फिर इतना सारा ब्लड वो अटैक हो गया, उसको अरेस्ट हो गया, तो फिर मेरे को वो सहन नहीं हुआ और मेरे को अटैक आ गया। तो फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जिसको भी दिल का बीमारी रहते हैं उसके एक टैबलेट दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लड को ऐसा ब्लड डायल्यूट होने के लिए या फिर ब्लड थिनर होने के लिए। तो फिर क्लिनिकल डेथ में ऐसा क्या होता है कि सपोज I have got a cardiac arrest, then I will get uneasiness in my heart because whole blood will come into my vein and vein stop working. And you know, at the speed of our heart, एक मिनट के अंदर ही अगर वो ब्लड वैसे के वैसे नहीं फ्लो अप किया तो अपना अटैक आ सकता है। यस, ड्राइंग एक दूजे के वास्ते, या फिर कौन सा तो मूवी था, एक पुराना मूवी था कि उनका उस एक्टर एक्ट्रेस को कोई शादी नहीं करवाते हैं, तो फिर रिवर में उनका खुद का जान लेते हैं। नाउ वेट ड्राइंग सबको पता है, अभी ओडिशा में बहुत फ्लड हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, वो वेट ड्राइंग के वजह से हुए। वेट ड्राइंग को तो सबको पता है। वेट ड्राइंग क्या होता है? सपोज we are not able to breathe inside the water, then what vocal cord get affected because of airways got affected because water enter into it. पानी अटक जाता है तो फिर हम लोग सांस नहीं ले सकते, कॉमन सेंस है। तो उसके लिए फिर वेट ड्राइंग हो जाता है। तो वेट ड्राइंग 10 मिनट के
बात हो गया, पानी अंदर चला गया तो अपने को ड्राइंग होता है। यहाँ पे फोटो देखते हैं, अभी वहां पे फोटो देखते हैं, देखो नॉर्मल वोकल कॉर्ड और क्लोज वोकल कॉर्ड। नॉर्मल वोकल कॉर्ड में देखा जाता है कि वहां पे व्हाइट कलर का, ऐसा व्हाइट कलर का जो ओपन करके एरिया है ऐसा ओपन हो जाता है। व्हाइट कलर का एरिया है ना वो ओपन है, मतलब ही कैन ब्रीथ। नाउ क्लोज वोकल कॉर्ड में क्या है, वो क्लोज है, मतलब वो आइदर वाटर जाएगा नहीं तो सांस जाएगा, आइदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो पानी जाएगा। अभी पानी में तो हम लोग जी नहीं सकते, ऑक्सीजन की वजह से ही जीते हैं। तो फिर एक बार वो वोकल कॉर्ड क्लोज हो गया तो अपने को डूब के मरना है। ठीक है, लास्ट में देखो क्या, लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो इन द लंग्स। ठीक है, नाउ ड्राई ड्राई, अभी ये अभी के मूवी में नहीं दिखाते, 80s 90s के मूवी में दिखाते थे। कोई तो हीरोइन आ जाती थी और जो गुंडा था एक नेगेटिव कैरेक्टर का, वो नेगेटिव कैरेक्टर का उसको मार डालता था और पुलिस को ऐसा बताता था कि उसने जान दी खुद की, शी और ही अटेम्प्टेड सुसाइड। सो पुलिस भी उसके लिए ध्यान नहीं देती क्योंकि फॉरेंसिक का पार्ट इतना 80-90s में नहीं था। तो पुलिस भी एज ए एक्सीडेंट करके डेट लिखती थी और फिर आगे पिक्चर चलता। ड्राई ड्राइंग इज व्हाट, समझो आई हैव बीन अटैक्ड बाय thief and he pushed my, or he blocked my inhale and outhale system in my neck, and फिर उसने मेरा बॉडी पानी में डाल दिया, उसके लिए ड्राई ड्राइंग। नाउ सपोज आई हैव बीन attacked by that thief or negative character and he killed me outside of the water and he pushed me inside the water. Then after pushing me but I am dead before entering into the water, then my vocal cord is closed. So पानी इधर के इधर नहीं रहेगा, मेरे लंग्स के अंदर पानी नहीं रहेगा। तो अभी 90s के बाद वो मालूम पड़ा, 90s के बाद फॉरेंसिक बहुत शार्प हुआ और 90s के बाद सबको पता चला कि नहीं ये मर्डर है, क्योंकि वो क्यों इसका बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर पानी नहीं है। ठीक है, तो फिर लंग्स के अंदर पानी कब रहेगा, तो अगर मैं पानी के बहाव में आके मर गया होता तो ही लंग्स में पानी जाता था। तो फिर लंग में पानी नहीं गया है, मेरा डेथ कब हुआ है, पानी के बाहर हुआ है, मतलब मेरा ड्राई ड्रोनिंग हुआ है। ठीक है, तो ड्राई ड्रोइंग मतलब मेरा सांस जो है, मेरा इनवर्ड्स आउटवर्ड्स का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो लैंड पे हुआ है, तो बाहर हुआ है, पानी के अंदर नहीं। तो फिर ड्राई ड्राइंग करके है, उसको एक्चुअल कंडीशन में बोलते हैं ड्राई ड्राइंग, बिकॉज लंग्स ऑफ ड्राइंग विटमिन्स और कंटेंट नो वाटर, सो देयर विल बी ड्राई ड्राइंग। दिस कैन बी हैपन व्हेन वाटर अटेम्प्टिंग टू एंटर द लंग्स, क्योंकि लंग्स जो है अपना काम जो है हर तरीके से करता है। अपने को 15-20 सेकंड के बाद अपने को आउटवर्ड करके अपने को सांस को लेनी ही लेनी। सेकेंडरी ड्राइंग ये बहुत अंडरस्टैंड करने जैसा है। सपोज इन सेकेंडरी ड्राइंग लिटिल बिट ऑफ वाटर गेट्स इनटू लंग्स एंड कॉजेस इन्फ्लेशन। अभी एक 2-3 दिन पहले मैं साउथ का एक मूवी देख रहा था, उसमें सिंगम करके था, सिंगम का वो एक्टर को एक करके था। वो एक एयरपोर्ट पे रहता है, वो एयरपोर्ट पे एक लड़की खाना खाती है और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर करके रहता है। तो खाना खाते वक्त उसका गली का हड्डी में इधर कुछ तो अटक जाता है, उसका सांस अटक जाता है और नीचे गिरती है। तो हीरो आता है, हीरो इधर होल करता है नेक के इधर और उसका एक इतना सा पीस, वो कुछ तो कुछ पीस रहता है, वो निकालता है और जिंदा बच जाता है। तो फिर सब लोग उसको ताली बजाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ड्राइंग। सपोज हम लोग खाते वक्त या फिर खांसते वक्त या फिर डूबते वक्त या फिर तैरते वक्त या फिर स्विमिंग करते वक्त, सपोज लंग के अंदर पानी गया और बहुत जाता ही रहा, हम लोग को नहीं हुआ सर्वाइव करने के लिए, तो हम लोग डूबने से पहले ही मर जाते हैं। तो फिर अपना रिपोर्ट क्या आता है कि डूब की वजह से नहीं मरा, वो सेकेंडरी ड्राइंग की वजह से मरा। मतलब उसका हाँ फंक्शन ऑफ
लंग्स स्टॉप हुआ, उसकी वजह से डेथ हुआ है, वो भी मालूम करना बहुत इजी है। आजकल का फॉरेंसिक सब कुछ बता देता है। यू ऑल नो वी कैन नॉट एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन एक्सेल ओनली ऑक्सीजन। तो वेन एवर कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल बाय आवर लंग्स, देन सेकेंडरी ड्रॉइंग इज देयर। यस, सुसाइड बाय हैंगिंग अभी तो नहीं है, ज्यादा ज्यादा केसेस ऐसा तो नहीं है, लेकिन 90s में 80s में ऐसा होता था कि 10वीं के रिजल्ट लग गए, 12th के रिजल्ट लग गए, फेल हो गया बंदा तो फिर सुसाइड कर लिया। अभी नहीं होता है वैसे, मतलब होता है, मतलब ये रिजल्ट की वजह से बहुत कम होता है। देखो, हैंगिंग, सुसाइड एंड डेथ। सुई सुई मतलब खुद का, साइड मीन स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ होल बॉडी, खुद के बॉडी का फंक्शन खुद ने ही स्टॉप कर देना, उसको बोलते हैं सुसाइड। लेकिन सुसाइड बाय हैंगिंग, ठीक है, अपना सुसाइड बाय पॉइजनिंग, सुसाइड बाय ड्रॉइंग, और ये सुसाइड बाय हैंगिंग है। सुई और साइड का सुई एंड साइड का डिफरेंस है, मैंने अभी बता दिया। अभी देखो, ये सुसाइड का हम लोगों ने कभी ना कभी पिक्चर में देखा होगा, या फिर वेबिनार में या फिर सेमिनार में कुछ ना कुछ इसके बारे में सुना होगा कि सुसाइड बाय हैंगिंग करके, क्या नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम सीआईडी वगैरह आप देखते हो। एज सुन एज आवर हेड गॉट entirely weighted by our body, then the ligature mark, मेरा वीडियो दिख रहा है तो इधर देख, ligature mark ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सुसाइड बाय हैंगिंग। समझो, अभी यहाँ का टाइटनेस अगर बढ़ गया, मेरा वीडियो देखो, यहाँ का टाइटनेस अगर बढ़ गया तो मेरे को तो देखो, अभी मेरे को बोलने को भी नहीं आता है, ठीक है। मतलब आज यहाँ पे जैसे भी वेटेज बढ़ गया, यहाँ पे वैसे टाइटनेस बढ़ गया, तो फिर लेगिचर मार्क हो जाता है, और मेरा बॉडी, मेरे को सांस लेने को नहीं होता है, मेरे का बॉडी क्लोज हो जाता है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर गर्म होने लगता है, और फिर मेरा फ्रैक्चर यहाँ से यहाँ तक, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रैक्चर हो जाता है। वो इंटरनली फ्रैक्चर होता है, वो एक्सटर्नली नहीं होता है, इंटरनली फ्रैक्चर होता है। इंटरनली सिर्फ लीगेचर मार्क दिखेंगे। यहाँ पे मेरा वीडियो देखो, इंटरनली लीगेचर मार्क दिखेंगे। सपोज किसने मेरे को मैं विक्टिम हूँ, मेरा सांस ऐसा रुका के मेरे को मार डाला, और मैं सुसाइड कर रहा था, ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए मेरे को हैंग किया। उस टाइम में मेरे को लिगेचर मार्क नहीं आएगा। लिगेचर मार्क इधर देखो, लिगेचर मार्क इधर और इधर, इधर और इधर नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट, मेरा स्टॉपिंग द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हुआ है। ये लिगेचर मार्क की वजह से नहीं है। एज इट इज नॉट अ लिगेचर मार्क, देयरफॉर आई एम नॉट अ सुसाइड विक्टिम, सुसाइडल विक्टिम मैं नहीं हूं, मेरा हैंगिंग करके डेथ नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रायंगलिंग, अभी एक मूवी आता, मैं नाम भूल गया। ट्रायंगलिंग में क्या होता है, सपोज मैं ही पकड़ता हूँ, नहीं तो आकाश विक्टिम करके पकड़ता हूँ। सपोज देयर इज अ विक्टिम नेम आकाश, उसका ऐसा बॉडी है और उधर पतला सा वायर करके है, और मेरे को पतला वायर करके ऐसा काट कर दिया, नहीं तो मेरे को फोर्स कर दिया, तो फिर मेरा ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो फिर इट हैपेंस दैट आई मे बी डेड। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट तो लगता है। 3-4 मिनट में से अंदर मेरे को ब्रीदिंग हो गया, नहीं तो मेरे को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दिया, तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू। The first question is how the medical examiner determines the time of death. Yes, you might get our PPTs. There is a one formula that will decide the time of death. Recent time of death, we can assume that सपोज आपने को पता चलता है कि हम लोग ने देखा है, कोई तो हॉरर मूवी देखा होगा कि जब हॉरर मूवी में एक बॉडी रहती है, वो बॉडी 2-3 साल से गायब है, तो फिर उसका भूत बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर इट इज। एज सुन एज 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स के बाद नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ, ना फिर एक्सट्रीम हीट की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। 36.5 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज 36.5 डिग्री में अगर कोई बॉडी मिली, तो 24 आवर के बाद उसमें एक मतलब कीड़े बनना चालू हो जाता है।
तो कीड़े बनना चालू चालू होने का प्रोसेस 48 आवर्स तक चलता है, और उनका भी डिटरमाइंड रहता है टाइम लिमिट। तो फिर एक कीड़ा, दो कीड़ा, तीन कीड़ा, ऐसा कीड़ी की वजह से, मतलब वो इंसेक्ट की वजह से उसका डेथ ऑफ टाइम पता चलता है। ये कीड़े का उम्र क्या है, ये कीड़ा कितने दिन हो गया जिंदा है। तो डेड बॉडी, जब जब कीड़े पड़ते हैं डेड बॉडी के ऊपर, तब अपने को डेड बॉडी का टाइम पता चलता है। इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला दिया है, वो तो फॉरेंसिक का ही फॉर्मूला है, मैं आपको पीपीटी मिल जाएगा, उसमें वो फॉर्मूला है। Sir, the next question is what is the difference between cause of death and manner of death? Yes, very good. I was expecting this question only. Cause of death and manner of death. Cause of death is what? Cause of death मतलब उसको, डेड बॉडी को, मतलब विक्टिम को, कैसे वो विक्टिम वो मर गया, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ डेथ। एंड मैनर ऑफ डेथ मतलब कैसे मारा। मतलब समझो मैं ही विक्टिम हूँ और मेरे को मेरे दुश्मनों ने एक फाइट मारा, फाइट मेरे मुंह पे पड़ी और मेरा सर वॉल पे जाके गिरा। तो फिर वॉल पे एक कीला था, वो कीला इधर घुस गया और मैं मर गया। तो फिर कीला इधर घुस गया, मेरे नेक के ऊपर घुस गया और मैं मर गया। तो फिर कॉज ऑफ डेथ क्या हो गई? ट्रॉफिंग द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट, वो कॉज ऑफ डेथ हो गई। लेकिन मैनर इज व्हाट? बाय इंसर्टिंग द नेल इन माय नेक, ये हो गया। ठीक है। Okay. Sir, the next question is what are the circumstances under which requires an postmortem? पोस्टमार्टम, हर एक सर्कमस्टांसेस में पोस्टमार्टम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। बिकॉज वी डोंट नो कि विक्टिम का कैसे डेथ हुआ है। सर्कमस्टांसेस मत पूछो, हर एक केस में पोस्टमार्टम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वेदर इज अ नेचुरल डेथ, कोई आपका, मतलब मेरा ही पकड़ लो, मेरे अभी 2 साल पहले मेरी दादी मर गई। तो फिर मैं इंसिस्ट किया, मेरी दादी तो बहुत बूढ़ी थी, 85 ईयर्स की थी, 2 साल पहले की बात है। मेरी दादी 85 ईयर्स की थी, कोरोना तब चालू नहीं हुआ था, कोरोना चालू होने से 2-3 महीने पहले वो गुजर गई। तो फिर वो मरने के बाद मैंने डॉक्टर को इंसिस्ट किया कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि हम लोगों को पता चलना चाहिए क्योंकि उसको क्या हो गया, ऐसे रात में क्या हो गया कि वो कैसे मर गई, हार्ट अटैक आ गया कि क्या हुआ। तो फिर हार्ट अटैक ही बोल दिया 85 ईयर्स में। ठीक है। तो पोस्टमार्टम मतलब ऐसे मत पूछो कि कोई क्राइम हुआ है तो ही पोस्टमार्टम करना चाहिए, ऐसे नहीं है। यू कैन इंसिस्ट टू योर डेड बॉडी। हम लोग जब अस्पताल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तब यू कैन इंसिस्ट कि उनका पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। तो फिर क्यों होना चाहिए? अभी ये तो बात की बात है। अभी 1-1.5 साल पहले से न्यूज आई थी, फेक थी सही थी मेरे को नहीं मालूम, कि जो जो भी कोरोना के मरीज थे वो तो मर गए, उनका पोस्टमार्टम नहीं किया। तो फिर एक गांव तक, कौन सा तो थाने का ही गांव था, तो फिर उसने डेड बॉडी का सब कवर वगैरह खोला, तो फाइंड आउट किया कि उसकी किडनी वगैरह गायब है। लेकिन आपको और मेरे को नहीं मालूम किडनी कैसे रहती है, कैसे दिखती है, अपने को नहीं मालूम। तो उसने कैसे क्या फाइंड आउट किया, कुछ नहीं, मेरे को केस के बारे में नेक्स्ट क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा पोस्टमार्टम होना ही चाहिए, 100% होना ही चाहिए। Sir, what is the ideal time to carry out the postmortem? हाँ, ऐसा कुछ टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है बिफोर द नाइट, मतलब बिफोर द सूरज ढलने से पहले पोस्टमार्टम करना चाहिए। लेकिन कोई कोई इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं कि अपने को पोस्टमार्टम हर एक टाइम पे करना ही चाहिए, लेकिन नॉर्मली आफ्टर द सनसेट नहीं होता कोई भी पोस्टमार्टम नॉर्मली। So what is the scope in forensic science, like for a young lawyer or law student who want to make career? Yes, if you are BSc, MSc, then it is very fruitful for you to understand this all the concept which I have given risk of it. देखो, अल्गोरिथम मोटिस है, पोस्टमार्टम है, अल्टीमोर्टम है, वो मेरे को भी समझ में के लिए टाइम लगा, 6 महीना टाइम लगा। तो फिर अभी तो गूगल है, अभी तो कुछ भी कुछ डाल के हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं BA इन फिलोसॉफी हूँ, मेरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगा। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको टाइम नहीं लगेगा, तभी आप क्वेश्चन के इधर आ जाते हैं कि
फॉरेंसिक साइंस में अपना कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना बाकी है। सपोज एज अ लॉयर यू आर आस्किंग मी, तो उसमें बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि डिफेंस लॉयर को फॉरेंसिक साइंस होना बहुत ही जरूरी बात है। अभी ये सेशन होने से पहले मैंने एक ई कॉन्ट्रैक्ट का भी सेशन लिया था, उसमें बोला था डिजिटल फॉरेंसिक साइंस। तो डिजिटल फॉरेंसिक था, ये तो प्योर फॉरेंसिक साइंस है। प्योर साइंस में क्या होता है कि देखो, समझो मैं एक हीरो हूं और मैंने पुलिस को बताया कि मैं नहीं गाड़ी चला रहा था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ठीक है, मैं हीरो हूँ, बॉलीवुड का हीरो हूँ, मैंने बोला मैं नहीं गाड़ी चला रहा था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो फिर मैं ही गाड़ी चला रहा था, ये प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को, मतलब प्रोसिक्यूटर को, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन देना पड़ेगा डॉक्टर की तरफ से कि हाउ आई विल बी एबल टू ड्राइव द कार विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीबडी व्हाइल ड्राइविंग द कार और व्हाइल ड्रिंकिंग, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक करने के बाद में ड्राइव कर रहा था नहीं कर रहा था, वो तो पूरा इस पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपका नाम बन गया, इसमें फॉरेंसिक में नाम बन गया, क्योंकि बहुत अभी हर एक, मतलब मैं थाने की बात कर रहा हूँ, थाने में कम से कम 3,000 लॉयर्स है, उसमें से हार्डली 100 लॉयर्स क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। 100 लॉयर्स में से 10 लॉयर्स ही उनका नाम थाने में मजबूत, मतलब बहुत सारा नाम अच्छा है। समझो पूरा इंडिया का केसेस हम लोग देखेंगे तो पूरे इंडिया में बहुत ही ऐसे कम लॉयर है जिनको फॉरेंसिक के बारे में जानने का, मतलब फॉरेंसिक के बारे में करियर करने का है या फिर उनको इंटरेस्ट है। तो फिर यहाँ पे वास्ट काम करने जैसा है, और आप उसके लिए काम करोगे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारा स्कोप है, ताकि मैं अभी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भी आप गूगल पे देख लीजिए, फॉरेंसिक साइंस के डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है और डिग्री कोर्स में भी है। डिग्री कोर्स वगैरह करेंगे तो आप सीबीआई, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, सीआईडी में एज अ काउंसलर या फिर एज अ एडवोकेट करके काम कर सकते हैं। Sir, the next question is, in case of natural death, what will be the cause of death and manner of death? नेचुरल डेथ है तो उसमें कॉज एंड मैनर का डेथ का सवाल ही नहीं आता। नेचुरल डेथ है, और नेचुरल डेथ है कैसे पता चलेगा? वो डॉक्टर को ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि डॉक्टर बोले कि देखो अपने को कॉज और मैटर चेक करने का है, तो उनका ऑटोप्सी करना पड़ेगा। ऑटोप्सी करने के बाद ही पता चलेगा कि नेचुरल डेथ मतलब किस नेचुरल से हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हार्ट डिजीज हुआ है, क्या हुआ है, या फिर बड़ा सा इंजरी हुआ है, उसका ब्लड लॉस हुआ है, उसका एक्सीडेंट कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो ऑटोप्सी करने के बाद ही पता चलेगा। Okay. ठीक है। The next question is, can we ask for another request for postmortem if we have any doubt in the current postmortem while the case is ongoing? Yeah, if the body is available, still body is available, then you can ask. Sir, could you please shed some light on the recent order passed by the government regarding the postmortem after sunset and what are its pros and cons? देखो, सनसेट और सनराइज अभी तो ये नहीं होता। पहले पहले के जमाने में, मतलब 80s से पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फॉरेंसिक में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या फिर बड़े बड़े शहरों में ही लाइट होती थी 24/7। अभी तो ये लाइट का भी प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी कुछ भी नहीं है। लाइट का प्रॉब्लम है तो भी अभी भी जनरेटर है, जनरेटर भी हम लोग कर सकते हैं पोस्टमार्टम। लेकिन पोस्टमार्टम करना है और करना ही चाहिए, तो फिर उसके लिए टाइम का जरूरत नहीं है। देखो, अपने अपने को 2-3 साल के पहले का केस याद रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को डिसाइड करते वक्त रात के 2-3 बजे कोर्ट खोला था। तो फिर टू गिव द जस्टिस टू द इंडिया और टू द पीपल, एनीथिंग कैन बी डन बाय टचिंग द हैंड्स ऑफ द लॉ। लॉ को हाथ में लेते हुए सब कुछ लीगल जो है वो कर सकते। तो फिर उसमें सनशाइन सनसेट का कोई रोल नहीं होता है। सनशाइन सनसेट का रोल कब होता है? जब उधर पॉसिबल नहीं है कि डेड बॉडी का ऑटोप्सी करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।